Welcome to the Prachita Ma'am's Concepts Learning, and today's chapter is complex number. As the name itself reflects, the complex doesn't mean the chapter is complex, right? Because any number is the complex number if you can divide it into real part and the imaginary part. So then till class 10th you studied the real numbers only, but here the real and imaginary we can just categorize it and compare it. We introduce the new term iota, right? And we can call this number as the complex number, right? And one thing I would like to add here, that NCRT is not at all sufficient, as the new NCRT has reduced even the Argand plane, right? So you must go through the Singage and definitely the previous year's questions, right? They are very, very helpful. And if you see that most of the questions are from complex number geometry, that is not given in NCRT, and two or three questions are from the cube root of unity, which is not introduced even in NCRT. So it's not a book for JEE, it's just a course book, right? If you are just preparing for any exam, definitely you should follow the different books and modules and definitely the previous year's questions. Okay, so let's start with the first question, that is the, yes, this question you can say this question is also about the complex number geometry, right? You must be able to understand that what is written here, that is the circle equation, how you can write the equation of a circle and the equation of the ellipse in the terms of the complex number, correct? So how you can write it? So equation of the circle, what we study in the coordinate geometry, that is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. That is not like in this complex number. So equations का pattern जो है और जो standard form है, that is different. So you must know, you can identify just by looking at this equation. This is mod of z minus 2 less than equal to 4. That means it reflects the center is 2 comma 0. Then center is 2 comma 0, and this one is radius of the circle, then radius is 4, right? So 2 comma 0, and if I will draw it here like 2 comma 0 agar center है, this is 1 2, this is 2 comma 0, and the radius is 4, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा. Then this is the circle, right? And after that, what is given? This is the equation of ellipse, right? So ellipse may we all know that there are two focuses are there. Then this is first focus and this is second focus, right? So z minus a लिख लो या b लिख लो, then this is the first focus. So first focus you can write it here from 2 comma 0 and the other focus is minus 2 comma 0. इसको equal to 0 करोगे तो ये minus 2 comma 0 हो जाएगा. And यहाँ जो 5 given है, that is equal to your 2a. राइट तो अगर कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2a. 2a इज द कंप्लीट मेजर एक्सिस ऑफ द ellipse, राइट? तो इफ आई कैन फाइंड a इज द सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि 2a आपका 5 दिया है तो a विल बी इक्वल टू 5/2 एंड इट्स सेंटर इज ओरिजिन. सो इफ आई एम राइटिंग इट एज ओरिजिन, then I am just trying to draw the ellipse. Then 2 comma 0 and this one is minus 2 comma 0. ये दोनों आपका फोकस हो जाएगा. इन दोनों को फोकस लेके if I will draw the ellipse like कुछ ऐसा आएगा. ये इसके इनसाइड ही आएगा बिकॉज हमने देखा है ये वाली वैल्यू कितनी है आपकी 5/2. सेमी मेजर एक्सिस इज 5/2. अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली लिख पाऊं तो एग्जैक्टली क्या आएगा, कोशिश करो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि रेडियस 4 है सर्कल की. अगर हम बात करें तो सर्कल की रेडियस 4 है, सेंटर 2 है. दिस पॉइंट विल बी 6 comma 0. This point will be 6 comma 0. And what you can write about this point? This point, क्योंकि ये आपका सेमी मेजर एक्सिस, सेंटर से ये डिस्टेंस 5/2 होगी, राइट? तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, दिस इज 5/2. सो यू कैन राइट दिस कोऑर्डिनेट एज minus 5/2 comma 0. लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन, राइट? तो इसमें ये हमारे पास क्या दिया था, एक सेट के फॉर्म में दिया था तुम्हें, राइट? तो जो z है दैट बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो तुम्हें सेट दिया है ये सर्कल की इक्वेशन दी हुई है. यहाँ से तुमने सेंटर और रेडियस को आइडेंटिफाई करके ये जो येलो कलर का सर्कल है दैट इज z1, तुम्हारा ए सेट है, राइट? और जो मैंने ये जो ग्रीन कलर का इलिप्स बनाया है दैट इज दिस इक्वेशन. तो हमें फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम ऑफ z1 माइनस z2. देन द मैक्सिमम ऑफ z1 माइनस z2, मुझे z1 माइनस z2 मींस डिस्टेंस निकाल, राइट? 2 पॉइंट. तो हमारे पास जो z1 पॉइंट होगा, ठीक है, वो लिखा हुआ है z1 बिलोंग्स टू a,
यानी कि वो सर्कल पे एक पॉइंट होगा Z1 एंड Z2 विल बी द पॉइंट फ्रॉम B. तो देन एवरीथिंग इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ सेट दैट क्रिएट सम कॉम्प्लेक्सिटी इन द क्वेश्चन. तो क्वेश्चंस आर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. वो लोग करते क्या है ना, उसको बस ऐसे करके सेट के फॉर्म में दे देते, तो आपको लगता है क्वेश्चन डिफिकल्ट है. क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, बस उसको बस समझने की, अंडरस्टैंडिंग की बात होती है कि वो किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है, राइट. तो अगर यही चीज सिंप्लीफाई करके दे दी जाएगी तो बच्चा समझ जाएगा, लेकिन उसी चीज को इस तरीके से लिख देते हैं कि इट लुक्स लाइक डिफिकल्ट, राइट. इट इज नॉट डिफिकल्ट बट इट लुक्स लाइक डिफिकल्ट, करेक्ट. तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम बस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही निकालना है, क्योंकि ये क्या है मैक्सिमम. तो अगर इस सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट लूं, राइट, वो Z1 होगा और इस इलिप्स पे कोई भी पॉइंट Z2 होगा, लेकिन वो मुझे दो पॉइंट ऐसे कंसीडर करने हैं कि उन दोनों पॉइंट के जो डिस्टेंस हो वो मैक्सिमम हो, राइट. तो इफ आई जस्ट वांट दैट द डिस्टेंस शुड बी मैक्सिमम बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, देन डेफिनेटली मैं पॉइंट कहाँ लूंगी, यहाँ पे और यहाँ पे. तो ये पॉइंट हो गया Z1 एंड दिस पॉइंट इज Z2. तो तुम्हें बस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही तो निकालनी है, राइट. तो ये हमारे पास 6,0 है और ये -5/2,0 है. आंसर आ चुका है, बिकॉज ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6 + 5/2. आंसर इज देयर. दिस इज 17/2, राइट. दिस इज योर आंसर, राइट. तुम डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिंपल था क्योंकि ये 6 राइट साइड है, फिर 5/2 लेफ्ट साइड है. तो बस तुम्हें अगर क्लियरली अगर डायग्राम बना पा रहे हो, इक्वेशंस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, देन क्वेश्चन इज सिंपल. अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री, राइट. तो अगर तुम्हें पता है तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्योंकि तुम्हें यहाँ दिख रहा है इसका सेंटर कितना है. सेंटर इज 6,0 and the radius is 5, correct. And this is again a circle, right. This is again a circle, and for this circle you can write the center is, इसको मैं C1 लिख देती हूँ, इसको C2, and इसका सेंटर क्या हो जाएगा, Z माइनस होता है तो ये हो जाएगा -2 + 6, -2,6. ये सेंटर हो गया और रेडियस ये हो जाएगी. तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसको मैं R1 लिख देती हूँ, तो सेकंड रेडियस हो जाएगी R2 इज 5. तो इस टाइप का क्वेश्चन क्लास में भी करते हो, करवाया जाता है, राइट. तो ये इस टाइप का क्वेश्चन JEE में पूछा जाता है. तो अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, Z बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस एंड दिस. तो दिस एंड दिस का मतलब होता है इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मींस इन दोनों पे एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, वो हमें क्या लेना है, Z. तो Z मेरा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो दोनों सर्कल्स को बिलोंग करता है. तो पहले मुझे दोनों सर्कल्स के बारे में पता होना चाहिए, दे आर टचिंग इंटरनली और एक्सटर्नली, और दे आर जस्ट हाउ दे आर कनेक्टेड, राइट. तो देन यू मस्ट बी एबल टू ड्रॉ हाउ दीज सर्कल्स आर कनेक्टेड, राइट. तो इसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं, दोनों के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों की रेडियस का एडिशन दे सकते हैं, या दोनों की रेडियस का डिफरेंस वगैरह देख सकते हैं. तो इससे हमें कुछ आइडिया मिल जाता है कि उनके बीच का कॉमन पॉइंट जो होगा उसी को मुझे Z लेना है, और उसके बाद मुझे इस क्यूबिक Z में दे रखी है उसकी वैल्यू बतानी है, राइट. तो एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन बनता है. तो कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना, ठीक है. तो पहले हम इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले, C1 C2, दैट मींस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस. तो डायरेक्ट से फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो. तो x1 - x2 यानी कि 6 + 2. तो अगर मैं यहाँ से निकालू तो √6 + 2 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, एंड प्लस 0 - 6 यानी कि 36. तो 64 + 36 इज 100 एंड स्क्वायर रूट विल बी 10. तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ गई 10. और R1 + R2 अगर देखोगे तो देखो यहीं से हो गया कि ये भी 10 है और ये भी 10 है, राइट. तो दैट मीन्स ये जो आपका रेडियस है और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी 10 है, दैट मीन्स ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, वो भी इक्वल रेडियस का सर्कल है. तो दैट मीन्स ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो यही जो मेरा पॉइंट होगा दैट विल बी द Z पॉइंट, करेक्ट. तो ये इसका मिड पॉइंट भी होगा बिकॉज रेडियस इज ऑल्सो इक्वल. तो यहाँ क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का भी हो सकता था, क्योंकि रेडियस दोनों की डिफरेंट दे रखी हो सकती थी, और राइट वो इंटरनली भी टच कर रहे हो सकते थे, एक्सटर्नली भी, या तो डिस्टेंस भी हो सकते थे. हमें कॉमन पॉइंट, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, एक हमें कॉमन पॉइंट को Z अज्यूम करना था. तो मैंने इस पॉइंट को Z लिया है. अब हमें दोनों का सेंटर तो पता ही है, दिस पॉइंट इज 6,0 and this point is -2,6. तो अब ये डेफिनेटली क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा. तो मैं इसका मिड पॉइंट अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो 6 - 2/2 यानी कि 4/2, दैट मीन्स 2 हो जाएगा. अगर मैं पॉइंट लिखूँ इसका तो 2 हो जाएगा, एंड 0 + 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा. तो 2, 3 इसका मिड पॉइंट हो जाएगा. तो मैं इसका कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देती हूँ 2 + 3i.
राइट। तो ये मेरे पास z बन गया, लेकिन मुझे इस z क्यूब पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसमें ट्रिक होती है ना। वैसे तुम डायरेक्टली इसमें z को x प्लस आई वाई लेके करोगे तो बहुत लेंदी जाता है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट एक शॉर्टकट बताऊं तो इसमें क्या है कि अगर तुम इसको इधर ही ले जाओ तो एक दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो कुछ हम क्या कर सकते हैं उसको डिवीजन की तरीके से या कुछ एल्जेब्रा यूज करके इसके पैटर्न में लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, जैसे मैंने एक कॉमन पॉइंट निकाल लिया, अब इसके बाद क्या कर लो, इसको z माइनस टू इज इक्वल टू 3i लिख सकते हैं। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो इट विल बिकम z स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4z इज इक्वल टू 9i स्क्वायर, मतलब माइनस 9। दैट मीन्स z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो मुझे ये मिल गई वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 मिल गई। नाउ आई विल जस्ट ट्राई टू राइट दिस क्यूबिक वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दिस। ऐसा लिखने से क्या होगा ना, अगर ऐसा लिख पाऊं तो इसका जो भी फैक्टर होगा उसको 0 पुट कर देंगे तो आधी की वैल्यूज 0 हो जाएंगी, राइट। तो हमें क्या करते हैं कि एक तरीका क्या है कि इसको तुम क्या करो, इसके टर्म में लिखना है, तो बेसिकली इसको इससे डिवाइड कर दो। मैं डायरेक्टली लिखने की कोशिश करती हूँ, अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा तो तुम भी डायरेक्टली लिख सकते हो, राइट। तो मैं बस इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को इसके टर्म में लिखना चाहूंगी। तो डेफिनेट सी बात है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यू विल हैव टू मल्टीप्लाई विद द लीनियर एक्सप्रेशन, करेक्ट। तो अगर मैं इसको यहाँ लिखती हूँ, ये वाली वैल्यू के इक्वल करना है, राइट, इस वैल्यू के इक्वल करना है मुझे, तो इस वैल्यू के इक्वल मैं लिख रही हूं इसके टर्म में। तो दिस इज z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, तुम इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, अगर तुम्हें नहीं क्लियर हो रहा तो हम 9 10 में डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करके यहाँ पे लीनियर फैक्टर मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्टली अगर लिखने की कोशिश करूँ, देखो z क्यूब है तो यहाँ पे z स्क्वायर है, तो एक वैल्यू तो z आएगी, तो ये z क्यूब हो जाएगा, और z से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस का 4z स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे प्लस 3z स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे माइनस का 4 आ रहा है, यहाँ पे प्लस 3 है, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे प्लस 7 करना पड़ेगा। तो अगर प्लस 7 करूंगी तो देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ से तुम्हें माइनस का 4z स्क्वायर मिलेगा और यहाँ से प्लस 7z स्क्वायर मिलेगा जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस 4 प्लस 7 विल गिव यू 3z स्क्वायर। तो 3z स्क्वायर हो गया, और अगर मैं z का कोफिशिएंट चेक करूं तो z में हो जाएगा 13z, ये 13 और ये z हो गया, और यहाँ से अगर हम देखें z का 7 के साथ आएगा, तो यहाँ से आएगा 13z, और 7 से करोगे तो माइनस का 7 4 28z, तो 13 माइनस 28 इज माइनस 15, तो बैलेंस हो गया, z वाला एक्सप्रेशन बैलेंस हो गया। अब कांस्टेंट की अगर हम बात कर ले तो 13 इंटू 7, तो 13 इंटू 7 मीन्स 91 आ रहा है, तो 91 आ रहा है, और हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में क्या दिया है 141, क्या ये 141। तो मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, 91 इसमें से माइनस कर दोगे, इट विल बिकम 50, राइट। तो मैंने बेसिकली क्या किया है, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टर्म में लिखा है, जिससे कि अगर तुम डिवाइड करते हैं ना तो 50 रिमाइंडर आ जाता, राइट, और ये इसके संग क्या आ जाता, इसका क्वोशिएंट आ जाता एंड ये रिमाइंडर आ जाता, तुम इसको ऐसे लिख लेते, राइट। अगर डायरेक्टली प्रैक्टिस करोगे तो आराम से लिख सकते हो, और क्योंकि इसकी वैल्यू 0 ही है तो ये पूरा 0 हो गया, तो 50 इज योर आंसर, राइट। तो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। अगर मान लो तुम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को z को x प्लस आई वाई करके लिखते हो, वो भी एक पैटर्न है, लेकिन उससे थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्लेक्स नंबर का है ये भी क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दिया, देखो आयोटा तो रूट माइनस 1 होते हैं, मुझे पता ही है, और ये मॉड z स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, तो मुझे बताना है कि यहाँ n क्या होगा, राइट। तो यहाँ 1 प्लस ni लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मॉड z स्क्वायर का वैल्यू गिवन है, तो एक काम करो, दोनों साइड मॉड ले लो और स्क्वायर भी कर दो, राइट। तो अगर हमको पता ही है कि जब हम मॉड लेते हैं तो वो इंडिविजुअली डिवाइड हो जाता है, क्या हो जाता है, वो इंडिविजुअली डिवाइड हो जाता है। तो अगर हम मॉड z लेते हैं तो मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं लेफ्ट साइड लिखती हूँ ये मॉड z स्क्वायर, तो राइट साइड में मॉड z स्क्वायर करोगे तो रूट भी हट जाएगा, तो मैं डायरेक्टली अगर लिखूं तो ये वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो रूट हट जाएगा, तो मैं डायरेक्टली इसको 2 लिख दे रही हूँ, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 1 5, तो ये आएगा 5, एंड दिस वन विल बी 9 प्लस 1 दैट मीन्स 10। इस तरीके से अगर 1 प्लस 3 आई है तो अगला टर्म क्या रहा होगा, 1 प्लस 4 आई रहा होगा, तो अगर मैं उसको भी लिख लूं तो यहाँ से क्या आएगा 16 प्लस 1 इज 17, क्योंकि स्क्वायर है ना मॉड z का, तो अपने आप ही चीजें कैंसिल आउट होती चलेंगी। तो अगर मैं 5i भी लिख लूं यहाँ पे, 1 प्लस 5i भी लिख लूं, तो यहाँ पे क्योंकि n आई तक है, मुझे n ही बताना है कि ये कहाँ तक आएगा, ठीक है। तो अगर मैं आगे तक 3-4 टर्म्स एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, जिससे कि हम प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या होगी n की वैल्यू, करेक्ट। तो अगर हम इसको लिखेंगे 25 प्लस 1 इज 26, तो ये वैल्यू हो गई 26, और राइट मुझे आगे भी वैल्यूज होंगी, अब मुझे नहीं पता कहाँ तक होंगी, तो ये वैल्यू को कंपेयर कर लेते हैं। तो दिस इज 4
44200, right? And this is 2 into 5 into 10 into 17 into 26 इंटू, अगर हम 6 का भी करते तो 1 प्लस 6i होता, तो ये यहाँ पे क्या आता, 36 प्लस 1 यानी कि 37 आता। तो लेट मी चेक ये कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला 10 है और ये वाला 10 है, तो ये दो 10 इंटू 10 100 हो गए, ये दोनों जीरो इसके संग चले गए, राइट। तो अब इसमें 442 बचता है। 442 को अगर मैं फैक्टराइज करूं, मतलब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, देखो बेटा 10 इंटू 10 और 442 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये बचेगा मेरे पास 221, तो 221 बचेगा, राइट। तो 221 को अगर हम देखें तो 221 किससे जाएगा, 13 से जाएगा, 13 2 26 होता है, राइट। तो 13 से करके देखो, हाँ 13 इंटू 17 चला जाएगा, राइट। तो 13 इंटू, तो 221 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 17, तो ये हो गया 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 17। अब देखते हैं कितनी वैल्यू से एडजस्ट हो पाएगा, राइट। तो देखो ये वाला 10 इंटू 10, ये वाला 10 इंटू 10 इक्वल हो गया, ये वाला 17 इसके संग चला गया, एंड 26 13 इंटू 2 26 हो गया, यानी कि मुझे आगे का ये वाला 37 ओपन करने की जरूरत नहीं है, यानी कि मेरे पास जो n की वैल्यू आई वो कहां तक आई, 5 तक ओपन करके आई, और ये n पूछ रहा था, सो 5 इज योर आंसर, राइट। तो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, इसमें तुम्हें बस यही वैल्यू दी थी मॉड z स्क्वायर की, कंपेयर करके बताना था, तो इसका फैक्टर्स करके बस तुम्हें चेकआउट करना था कि कितनी वैल्यू इस पे आके खत्म होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई की वैल्यू तो मुझे पता नहीं होती है, ये मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, राइट। और देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे z की पावर 201 दिया है, तो अगर मुझे इसी की वैल्यू पता चल जाए तो यहाँ पुट करके आंसर आ जाएगा। तो मेन पर्पस क्या है कि z की पावर 201, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमें किसी की ऐसे बहुत ज्यादा पावर निकालनी है तो मैं उसको एक्सपोनेंट के टर्म में भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसका मॉड्यूलस और e की पावर आई थीटा लिख सकते हैं, राइट। और थीटा जो होता है वो उसका आर्ग्यूमेंट होता है, राइट। तो अगर हम इसको चेक करें तो दिस नंबर इज नथिंग बट, इसको आर्गन प्लेन के फॉर्म में लिखोगे तो दिस इज √3/2, 1/2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा √3/2, 1/2। सो ये हो गया उसका मॉडुलस ऑफ z, जो कि 1 ही आएगा, क्योंकि अगर तुम इसको देखोगे तो अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/4, दैट मीन्स 4/4 यानी कि 1, राइट। तो मॉडुलस आ गया 1 एंड e की पावर आई थीटा, तो ये वाला एंगल निकाल लो, यही आर्ग्यूमेंट है, करेक्ट। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू y/x, तो 1/2 अपॉन √3/2, तो 1/√3 यानी कि tan 30, दैट मीन्स π/6, राइट। तो 30 डिग्री आ गया इसका थीटा, करेक्ट। तो π/6 आ गया। तो अगर हम लिखना चाहें तो मॉडुलस ऑफ z तो 1 ही है, दिस इज 1, तो ये आ जाएगा बेसिकली e की पावर आई π/6, करेक्ट। और मुझे क्या चाहिए, z की पावर 201 चाहिए, तो बेसिकली दोनों साइड पावर 201 कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर आई 201 π/6। अब इसको कुछ ब्रेक करके लिख लेते हैं, राइट। तो मैं इसको, अगर ये चलो 2 से रिड्यूस हो रहा है, 2 से रिड्यूस नहीं हो रहा है, किससे, ये 201 था ना, ओके, 2 से नहीं रिड्यूस हो रहा, 3 से रिड्यूस हो रहा है, ओके। सो 3 2 जा 6 एंड 67 π/2, तो ये आ जाएगा e की पावर आई 67 π/2। तो 67 π/2 को अगर मैं स्प्लिट करूं या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 33 पाई प्लस π/2, e की पावर आई 67 π/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस इज 33 पाई प्लस π/2, बिकॉज इट विल बिकम 66 प्लस 1, राइट। तो 67 हो जाएगा। तो मैंने इसको इंटीजर के टर्म में इसलिए लिखा क्योंकि 1 राउंड पे मुझे पता है कि कंप्लीट एंगल बन जाता है, यानी कि अगर 32 पाई मेरे पास क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है, तो वो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो 32 पाई तो यहाँ से हट गया, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ, तो 32 पाई को मैं हटा सकती हूँ, 32 पाई की जो वैल्यू होगी, क्योंकि सेम बेस से पावर 1 होती है ना, तो अगर मैं 32 पाई e की पावर 32 पाई को अलग कर लूँ और पाई प्लस π/2 को अलग कर लूँ, वो मैं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, i की पावर पाई प्लस π/2, दैट मीन्स e रेज टू द पावर i 3 π/2, तो 3 π/2, और हमें पता है e की पावर आई थीटा को क्या लिखते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट। तो इसको लिख लो सिंपली, तो इट विल बिकम cos 3 π/2 प्लस आई साइन 3 π/2, राइट। और ये वाली ऑड मल्टीपल ऑफ cos थीटा क्या होता है, cos 90 0 होता है, 3 π/2 0 होता है, तो ये तो 0 ही हो गया, दिस इज 0। एंड साइन का जो होता है, साइन पाई प्लस π/2 है, तो डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू -1 आएगी,
ये वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस का आई, एक सेकेंड, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस पाई, हाँ तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस आई, ये वैल्यू आ गई अगर मेरे पास माइनस आई, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो दिस वैल्यू इज माइनस आई। तो अगर मैं इसको सीधे यहाँ माइनस आई पुट कर दूं, इसकी पावर क्या है 201 है, तो अगर मैं इसको माइनस आई लिख दूं तो माइनस आई की पावर 8, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2i रेज टू द पावर 8। तो पावर अगर इवन नंबर होता है तो वो पॉजिटिव भी हो जाता है, और i की पावर 8 इवन मल्टीपल है तो वो 1 ही हो जाएगा, एंड 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 इज 256, सो आंसर इज 256, राइट। तो देखो इसमें भी हमारे पास जो था उसको तुम्हें एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना आना चाहिए था, तो अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख पाते हो है ना, तो एक डिमॉइवर थ्योरम करके होती है ना, तो उसको जरूर रिवाइज कर लेना, तो उसके बेसिस पे तुम लिख पाओगे तो समझ आ जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास ज्योमेट्री पे दिया हुआ है ना, तो अगर हम इसको ज्योमेट्री पे देखें यहाँ पे, राइट, तो ये क्वेश्चन में क्या बन रहा है, यहाँ पे 2z है, तो पहली चीज तो यहाँ पे z माइनस होना चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो पहले इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लो, तो अगर इक्वेशन को हमारे पास ये सेट दिया हुआ है कोई एक, और तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पे जो z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उस z को इसमें पुट करना है, तो बताना है कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, राइट। तो ये वाली इसकी बेसिकली तुम्हें यहाँ से डिस्टेंस बतानी है, तो पहले इसका कुछ तुम्हें डायग्राम बना के चेक करना पड़ेगा कि क्या है, तो पहले मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेती हूँ जिससे कि कुछ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाए। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कुछ ऐसा आ जाएगा 3/2 एंड z माइनस 3/2 1 प्लस आई लेस देन इक्वल टू 7/2, राइट। तो यहां से ये आपका एक रिंग का स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर तुम ध्यान दो तो इसका जो सेंटर आएगा वो आएगा -3/2 और -3/2, मतलब +3/2, और z माइनस ए होता है, तो ये 3/2, 3/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 3/2, 3/2 मैं यहाँ ले लेती हूँ, दिस इज 3/2, 3/2, तो इस सेंटर पे तो ये डिस्टेंस 3/2 है, और इसकी रेडियस भी देखो कहां से कहां तक है, तो ये एक तरीके की रिंग आएगी, तो जो इनर वाली जो सर्कल होगी उसकी रेडियस 3/2 होगी, जो बाहर वाला सर्कल होगा उसकी रेडियस 7/2 होगी, तो जो 3/2 वाला होगा तो वो तो देखो इसको टच ही करेगा क्योंकि यही रेडियस है, दिस इज 3/2, दिस इज 3/2, राइट। और अगर जो आउटर सर्कल होगा वो 7/2 है, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो ये आउटर वाला सर्कल है, इसके लिए क्या है, ये 7/2 है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू 3/2 है इसकी रेडियस, तो मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इसके बीच में कहीं होना चाहिए, इस रिंग में, क्योंकि वो इनइक्वालिटी जो दी है वो इन बिटवीन की दी है, इन बिटवीन दिस एंड दिस, राइट। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो उसके बीच में कहीं लाई करेगा। अब ध्यान देना, मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, इस सेट में जो भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है इससे। तो अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो दिस पॉइंट इज -5/2, -3/2, ये पॉइंट है, तो -5/2, -3/2 जो पॉइंट होगा दैट विल बी डेफिनेटली इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहां ले लेती हूँ, ये पॉइंट का होगा, यहाँ कहीं होगा -5/2, -3/2, ये P पॉइंट मैंने ले लिया। अब इस P पॉइंट की यहाँ से तुम्हें इस वाले रीजन से मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो मिनिमम डिस्टेंस होगी तो डेफिनेट सी बात है कि तुम उसको सर्कमफेरेंस पे लोगे तभी मिनिमम मिलेगी। तो अगर मैं इसको ऐसे डायरेक्टली ज्वाइन कर दूं, राइट, तो मिनिमम डिस्टेंस मुझे किससे चाहिए, इस वाले रीजन से मिनिमम है, तो इस रीजन में जो पॉइंट है देखो, ये वाले रीजन में ये वाला सर्कल इंक्लूडेड है, राइट, तो ये वाला 7/2 इसमें क्या है, इंक्लूडेड है, राइट। तो मैं वो पॉइंट यहाँ पे भी ले सकती हूँ, तो मैं अपना कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ ले लेती हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो ये मैंने अपना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, तो इससे ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी, अगर मैं इसको कुछ Q ले लेती हूँ पॉइंट, एंड ये O हो गया, ठीक, तो मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए, कौन सी, PQ, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस गिवन पॉइंट, राइट। तो ये पॉइंट मैंने निकाले थर्ड क्वाड्रेंट में था, और इस पॉइंट से तुम्हें इसकी डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि यही डिस्टेंस मिनिमम होगी और कोई डिस्टेंस मिनिमम नहीं हो सकती, राइट। इस रीजन में कोई भी और डिस्टेंस बनाओगे तो सारी डिस्टेंस ज्यादा ही होगी, तो यही मिनिमम डिस्टेंस होगी, तो इसको निकालना सिंपल है, तुम क्या कर सकते हो, OP में से OQ माइनस कर दो, यू नीड टू कैलकुलेट PQ ना, तो PQ अगर निकालना है तो OP माइनस OQ, तो OP कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये डिस्टेंस अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल दूं तो 3/2 प्लस 5/2, तो 3/2 प्लस 5/2 कितना हो गया, 8/2, यानी कि 4 का स्क्वायर। तो अगर मैं OP निकाल रही हूँ तो 3/2 प्लस 5/2 इज 8/2, यानी कि 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, एंड 3/2 प्लस 3/2 इज 6/2, यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया 9,
राइट। तो ये हमारे पास, अगर हम OQ की बात करें तो OQ तो रेडियस ही है आउटर की, यानी कि 7/2 ही होगी। तो ये 25 हो गया, यानी कि 5, तो ये जाएगा तुम्हारे पास 5 - 7/2, तो 10 - 7 यानी कि 3/2 विल बी योर आंसर। तो देख रहे हो क्वेश्चन, अगर तुम्हें सिर्फ उसका ज्योमेट्री वाला पार्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो तुम काफी क्वेश्चन बना सकते हो। ऑलमोस्ट हर सेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया है, राइट। कि तुम्हें सर्कल पता होना चाहिए, तुम्हें रिंग पता होना चाहिए, राइट। ये वाली चीजें क्लियर होनी चाहिए जो बुक में नहीं दी हुई है एनसीईआरटी में। हाँ, ये क्वेश्चन देखो थोड़ा यहाँ पे बार है, ये थोड़ा सा सिंपल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो सेट के फॉर्म में दिया है, बट क्वेश्चन में देखो हमें सिंपली क्या निकालना है, मॉड जेड का स्क्वायर ही निकालना है, यानी कि तुम जेड की सारी पॉसिबल वैल्यूज निकाल के उसके हमने फिर उसको सम कर दो। सिग्मा का मतलब क्या है, समेशन करना है, राइट। तो पहले मैं जेड की पॉसिबल वैल्यूज अगर मुझे इस वाली इक्वेशन से निकालनी है, तो मुझे ज्यादा कुछ दिया नहीं है इसमें, कोई इक्वेशन वगैरह और सर्कल या कुछ ऐसा सा ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, एल्जेब्रिकली इसमें जेड को x + iy ले लो, राइट। तो ये तो हम सिंपली हमारे इक्वेशन में कर ही सकते हैं। तो z को अगर मैंने x + iy लिख लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + iy होल स्क्वायर प्लस z बार कितना हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा x - iy = 0। अब रियल इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेते हैं पहले। तो x² iy का स्क्वायर हो जाएगा -y² प्लस 2ab करेंगे तो आएगा 2xy प्लस x - iy = 0। तो अगर मैं इसे रियल पार्ट को इक्वेट अलग करूं, तो आएगा 4x² और 4y² प्लस x। तो यहां से रियल पार्ट बनेगा और एक ये रियल पार्ट बनेगा, तो रियल पार्ट को मैं अलग लिख दे रही हूँ। तो रियल पार्ट मेरे पास बन रहा है 4x² - 4y² प्लस x = 0, राइट। और अगर इमेजिनरी पार्ट को देखें, तो यहां से बनेगा 4 × 8xy, राइट। इट विल बिकम 8xy एंड यहां से बनेगा -y = 0। ये मैंने किया इमेजिनरी पार्ट को 0 और ये किया है रियल पार्ट को 0, करेक्ट। तो अगर यहां से अगर y को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा मेरे पास 8x - 1 = 0। और कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहां से कैलकुलेट करना आसान था, तो मैंने राइट साइड से कैलकुलेट कर लिया। तो यहां से y की वैल्यू एक 0 आ रही है और x की वैल्यू आ रही है 1/8, राइट। तो अब इन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग यहां पे वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां से दो वैल्यूज निकाल सकते हैं हम लोग, दोनों केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे। एक बार निकाल लो y = 0 के लिए, क्योंकि ये समेशन पूछ रहा है, तो जितनी भी पॉसिबल हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे उन सबके मॉड्यूलस के स्क्वायर का सम पूछ रहा है, राइट। तो एक बार y = 0 ले लिया और x को 1/8 ले लिया। तो अगर हम y को 0 लेते हैं, तो x की क्या पॉसिबल वैल्यूज, अगर y को 0 लिया तो यहां से बनेगा मेरे पास 4x² प्लस x = 0। तो अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लेती हूँ, तो x कॉमन हो जाएगा, तो क्या वैल्यूज आएंगी, 4x + 1 = 0। तो x की दो वैल्यूज आ रही है 0 और -1/4, राइट। तो 0 एंड -1/4 ये x की वैल्यूज है। अब इधर x को अगर मैं 1/8 पुट करती हूँ, तो x को अगर मैं 1/8 पुट करती हूँ, तो यहाँ बनेगा 4 × x², यानी कि 64 माइनस 4y² प्लस x को 1/8 पुट करना है = 0। तो ये हो जाएगा 16, देन 4y² को राइट ले जाते हैं, तो 1/16 प्लस 1/8 दैट इज इक्वल टू 4y²। तो 1/16 प्लस 1/8 16 एलसीएम और 2 + 1 3, देन इट विल बिकम 3/16। तो 3/16 इज इक्वल टू 4y²। तो यहां से आ रहा है मेरे पास, ये y² है, तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें, तो y² की जो वैल्यू आ रही है वो 3/64 आ रही, 3/64। तो y की वैल्यू अगर स्क्वायर रूट ले लोगे तो आएगी ±√3/8। तो ये y की वैल्यूज आ गई ±√3/8। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखने हो, तो 4 कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकते हैं, ध्यान देना। तो 4 कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बन सकते हैं, एक बार यहां से अगर हम ले लेते हैं y को 0, तो x की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, तो दैट मीन्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास बनेगा 0 प्लस x भी 0 है, y प्लस भी 0 है, तो 0 + 0i, इससे खैर कोई मतलब भी नहीं है। और अगर सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2, अगर सेकंड देखोगे तो y 0 है लेकिन x -1/4 है, तो आ जाएगा मेरे पास -1/4 प्लस 0i। और थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से बना लो, 1/8 है और y ये है, तो 1/8 प्लस √3/8i और 1/8 माइनस √, 4 बन जाएंगे। तो ये बनेगा 1/8 प्लस √3/8, 1/8 था ना, हाँ ठीक है, आई। और ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा 1/8 माइनस √3/8i। तो हमें करना क्या है, इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना है और उनके स्क्वायर को ऐड कर देना है, राइट। तो अगर इसका मॉड्यूलस देखेंगे तो 0 ही आ रहा है,
इसका मॉड्यूलस अगर हम देखें तो अंडर रूट हटेगा, स्क्वायर करने का मतलब सिर्फ अंडर रूट हटेगा और इसका मॉड्यूलस आएगा 1/16। 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/16। और अगर इसका मॉड्यूलस देखेंगे तो आएगा क्या 1/64 प्लस 3/64। तो 1/64 प्लस 3/64 इज 4/64, 4/64 इज 1/16 और जो स्क्वायर है वो मॉड्यूलस से हट चुका है। तो सेम यहाँ पे भी वही आएगा 1/16। तो इन सबको अगर हम ऐड करेंगे देन इट विल बिकम 3/16, राइट। तो सॉरी योर आंसर विल बी 3/16, राइट। तो देखो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगी क्योंकि बस तुमने क्या किया, इसके दो केसेस लेके बना लिए, जितने पॉसिबल कॉम्प्लेक्स नंबर थे वो सारे बन गए और उसके बाद में हमने क्या लिया, इनका मॉडुलस लेके स्क्वायर लिया, वही हमें उनको सम करना था, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपने जैसे भी सॉल्व किया है उसको सॉल्व करो, उसको सिग्मा लगा देंगे और उसमें कुछ कुछ चीजें ऐड कर देंगे, उसको सेट के फॉर्म में दे देंगे, दैट मेक्स अ क्वेश्चन डिफिकल्ट, इट जस्ट लुक्स लाइक डिफिकल्ट। मैं बार बार सेम चीज बोल रही हूँ, राइट। तो लगता डिफिकल्ट है बट इतना होता नहीं है। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से, देखो ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुमने इसको पढ़ा हो -1 प्लस i√3/2, दिस इज ओमेगा, राइट, एंड दिस वन इज ओमेगा स्क्वायर, या तुम इसको 1/ओमेगा भी लिख सकते हो क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमें क्या पता होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर 1/ओमेगा के इक्वल होता है, इसको ओमेगा बार भी कह सकते हैं, या ओमेगा इज इक्वल टू भी 1/ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 है ना, राइट, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ठीक है। तो और जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो ओमेगा होते हैं यही होते हैं, राइट। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तुम लोग ने पढ़ा होगा, राइट। तो ये वाली वैल्यू अगर हमने, ये ओमेगा है और ये वाली वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो अगर अल्फा बीटा को अगर मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो एक चीज और ऑब्जर्व करने वाली है, अगर ध्यान से देखो क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखो तो यहाँ जो कोफिशिएंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं, देखो 779 779 779, इसका थोड़ा अलग है, तो इसको बाद में सॉल्व कर लेना, पहले इन तीनों को देख लो, इनके कोफिशिएंट सेम दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ध्यान देना। तो अगर मैंने अल्फा को ओमेगा लिखा और बीटा को ओमेगा स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, ये तुम्हारे पास 7 माइनस 7 ओमेगा प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर और उसकी पावर 20 भी है, और यहाँ क्या बनेगा 9 प्लस 7 ओमेगा माइनस 7 ओमेगा स्क्वायर, यही बनेगा, राइट, और इसकी पावर भी 20 है, और -7 प्लस 9 ओमेगा प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर भी 20 है। तो मैं अभी इसको बाद में लिखती हूँ, ये वाला टर्म थोड़ा अलग है, राइट। तो प्लस में ये भी है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इन तीनों को देखते हैं। तो क्या हम इसमें से सेम कुछ बना सकते हैं ऐसा, तो अगर हम सबको इसी की तरह बनाना चाहें, राइट, फर्स्ट वाले की तरह, तो इसको ऐसे लिख लेती हूँ 7 माइनस 7 ओमेगा प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 20। तो अगर मेरे पास यहाँ देखो 7 है और यहाँ 7 ओमेगा है, तो इसमें से ओमेगा कॉमन ले लो, और पावर 20 है तो ओमेगा की पावर 20 हो जाएगा, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा रेज टू द पावर 20। तो अगर मैंने इसमें से 7 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 7, और यहाँ से अगर तुमने 7 कॉमन लिया, ओमेगा कॉमन लिया था, तो यहाँ बचेगा 7 ओमेगा और यहाँ बचेगा 9/ओमेगा, राइट। तो 1/ओमेगा को तुम क्या लिख सकते हो, 1/ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, 1/ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ 9/ओमेगा बनेगा, तो मैं इसको सीधे सीधे 9 ओमेगा स्क्वायर लिख दे रही हूँ, राइट। देखो ध्यान से यही टर्म सेम रिपीट हो गया, सेम इसको भी अगर हम देखें बनाना चाहें तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अगर ओमेगा स्क्वायर कॉमन लोगे और पावर 20 है तो ओमेगा की पावर 40 हो जाएगा, राइट। तो अगर मैंने इसमें से ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 7, और अगर इसमें ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा -7 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और 1/ओमेगा स्क्वायर को आई कैन राइट ओमेगा, तो ये बन जाएगा 7 माइनस 7 ओमेगा प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी क्या बन जाएगा 1/ओमेगा, जिसको ओमेगा स्क्वायर लिख देना। लास्ट वाला टर्म भी है वो हम बाद में यूज करेंगे। तो बस इन तीनों टर्म में ध्यान से देखो, यही चीज हम पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, ये तीनों कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा मेरे पास 7 माइनस 7 ओमेगा प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर की पावर 20, ये कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 20 प्लस ओमेगा की पावर 40। ध्यान देना क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, राइट, तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो क्यूब यानी कि यहाँ पे बचेगा मेरे पास क्या, ओमेगा की पावर 18 तक तो 1 हो जाएगा, तो स्क्वायर बचेगा, राइट, और यहाँ पे भी क्या बचेगा 39 तक 1 हो जाएगा, तो यहाँ ओमेगा बचेगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, तो ये वाला पूरा टर्म हो गया 0। दैट मीन्स हमें सॉल्व करने के लिए क्या बचा, सिर्फ ये वाला टर्म, सिर्फ इसी को मुझे सॉल्व करना है, राइट। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वही करना है, अल्फा की जगह क्या पुट करना है ओमेगा और बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 14 प्लस 7
7 ओमेगा प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 20। करेक्ट। तो यहां से अगर देखें तो 7 अगर हम कॉमन ले लें तो बनेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 20। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, राइट। तो 14 माइनस 7 क्या बचेगा, ये वैल्यू क्योंकि -1 हो गई है तो यहाँ बचेगा मेरे पास 14 माइनस 7 रेज टू द पावर 20, यानी कि 7 रेज टू द पावर 20, ये आंसर होगा। लेकिन मुझे कंपेयर किससे करना था, इसको m रेज टू द पावर 10 से। तो इसको पावर 10 में बनाओगे तो ये 7 की पावर 2 की पावर 10 बनेगा। तो 7 स्क्वायर इज 49, so your answer will be 49 will be your answer। ध्यान देना, तो कंपेयर भी कर लेना। और ये तुम्हें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन था, ये क्लियर होना चाहिए कि ओमेगा क्यूब क्या होता है, व्हाट इज ओमेगा क्यूब, तो ये बन जाएगा, राइट। ओके ध्यान दो, ये फिर से तुमने ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सर्कल की इक्वेशन है, यहां से तुम क्या कर लो, z निकाल लो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखो मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे पास किससे आ रहा है, ज्योमेट्री से आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री से। तुम्हें सर्कल की इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी आती है और फिर उसका z निकल आएगा, उसके अंदर इसको पुट करके वैल्यूज आ जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो इसका सेंटर क्या बन रहा है, 5,0, सेंटर इज 5,0 एंड द रेडियस इज 3, करेक्ट। तो मुझे 34 टाइम्स इसकी वैल्यू चाहिए, तो कहीं से 5z आ जाए और 5iz आ जाए तो मैं इसको यहाँ पुट कर दूं, राइट। तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके बारे में ये दिया हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो, ध्यान देने वाली बात है, मैक्सिमम पॉजिटिव प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाए ध्यान से, और मैक्सिमम पॉजिटिव प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमारे पास क्या होता है, ओरिजिन से जो हम ड्रॉ करते हैं मैग्नीट्यूड, उससे जो एंगल बन रहा होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो आर्गुमेंट होता है, ध्यान दो। तो यहाँ पे अगर मेरे पास रेडियस 3 है और सेंटर 5,0 है, तो 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट हो गया 5,0 एंड 1 2 3, तो ये रेडियस है, तो कुछ ऐसा सा सर्कल बन जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये मेरे पास फिलहाल सेंटर है, वो लिख लेती हूँ इसको, और ये इसकी रेडियस हो गई 3। तो हमें आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है ना, कि ओरिजिन से तुम्हें यहाँ पे एक पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट निकाला, यानी कि यहाँ से ये वैल्यू ऐसे ऐसे से घूमेगी, इधर जब होगा तो ये वैल्यू क्या होगी, निगेटिव आर्ग्यूमेंट होगी, ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। फॉर एग्जांपल अगर तुम इसको ऐसे 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 बनाते हो तो सबसे मैक्सिमम पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट कब मिलेगा तुम्हें इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब ये इस तरीके से जाएगा, राइट। तो जब ये यहां से जाएगा तभी मैक्सिमम, क्योंकि यहां से जाएगा तो कब मिलेगा, यहाँ पे तो निगेटिव आर्ग्यूमेंट है, तुम्हें पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट चाहिए तो एक्स एक्सिस के अबव ही मिलेगा, राइट। ये वाली एक्सिस रियल एक्सिस होती है, ये वाली इमेजिनरी एक्सिस होती है। तो मेरे पास जो पॉइंट z होगा वो डेफिनेटली यही वाला होगा, क्योंकि इससे ऊपर तो वो सर्कल के बाहर ही निकल गया, तो ये मेरे पास पॉइंट हो गया। तो अगर मैं इस लाइन को सेंटर से ज्वाइन कर लूं, ध्यान से देखो, ये लाइन को सेंटर से ज्वाइन कर, क्योंकि तो मुझे देखो एक बात पता ही है कि रेडियस 3 है, तो ये वैल्यू क्या हो गई 3, और ये वैल्यू तो 5 थी ही, और ये एंगल 90 होता है, ये टेंजेंट और रेडियस का एंगल, तो ये 3 4 5 वाला ट्रायंगल बन गया, तो ये क्या हो जाएगी, पाइथागोरस से 4 आ गई, तो आर्ग्यूमेंट ये एंगल होता है, राइट। तो दिस इज थीटा। ओके, तो तुम z के बारे में काफी कुछ लिख सकते हो, क्योंकि अब z मेरे पास क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अगर तुम्हें इसका मॉडुलस, यानी कि देखो ओरिजिन से ये जो वैल्यू होती है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, यही इसका मॉडुलस होता है, मतलब मॉडुलस होता है, तो इसको r cos थीटा प्लस r sin थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो अगर हम इसको z को लिखना चाहें तो z को हम क्या लिख सकते हैं, 4 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, ये i टाइम्स होगा, ठीक है। 4 cos थीटा प्लस i टाइम्स 4 sin थीटा हम इसको लिख सकते हैं, राइट। तो ये मेरा बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम sin थीटा cos थीटा की वैल्यू चाहें तो वो भी निकाल के इसी में पुट कर देते हैं, बेटर रहेगा। तो अगर हम cos थीटा निकालेंगे तो 4/5 हो जाएगा, और sin थीटा क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो cos थीटा को अगर हम 4/5 लिख देते हैं तो हो जाएगा 16/5 i टाइम्स, और sin थीटा इज 3/5, तो इट विल बिकम 12/5। तो ये मेरे पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर मुझे क्या चाहिए, 5z और 5iz चाहिए, तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 5z इज इक्वल टू 16 प्लस 12i, ये हो गया मेरे पास 5z। तो अगर मैं इसको i से और मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, i से इसलिए करूँगी क्योंकि मुझे 5iz भी चाहिए, फिर इसमें पुट ही कर देंगे वैल्यूज, को आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको 5iz निकाले तो i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i स्क्वायर इज -1, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 16i, -12 प्लस 16i, ये आपका हो गया 5iz की वैल्यू, राइट। तो अगर मैं इसको इसमें पुट कर देती हूँ, ये जो वैल्यू है मुझे इसी की वैल्यू चाहिए, तो 34 टाइम्स, तो मॉड की प्रॉपर्टी होती है स्प्लिट हो जाता है, ऊपर का न्यूमरेटर में अलग मॉड ले सकते हो, डिनोमिनेटर में अलग ले सकते हो, उसको तुम्हें देखो स्क्वायर भी कह रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इसका इंडिविजुअली पहले 5z की अगर वैल्यू पुट कर देती हूँ
तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, मॉड लिख देती हूँ। तो 5z की वैल्यू क्या है, डायरेक्टली लिख देती हूँ। यहाँ पे 5z माइनस 12 है, तो इसमें से माइनस 12 करोगे तो 16 माइनस 12 इज 4। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 4, 5z माइनस 12 था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस 12i, और डिनोमिनेटर में आएगा मेरे पास 5iz प्लस 16। तो इसमें अगर प्लस 16 करेंगे तो 16 माइनस 12 इज 4, तो इट विल बिकम 4 प्लस 16i। इसमें भी मॉड का स्क्वायर, तो अगर हम इसका मॉड लिख ही देते हैं यहाँ पे, तो आंसर आएगा मेरे पास 34 टाइम्स इसका मॉड हो जाएगा। मॉड का स्क्वायर करना है तो रूट हटाई के लिख देती हूँ, तो हो जाएगा 16 प्लस 144, 16 प्लस 144, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 16 प्लस 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, यानी कि 16 प्लस 256। इसके बाद सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से आएगा 34 एंड 144, 154 और 160, एंड दिस विल बिकम 7 एंड 2, 272, राइट। तो अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूं तो ये 17 से जा रहा है, 10 बचेगा, तो 10 बचेगा तो 102, 17 6 राइट, ठीक है। 16 आ गया, तो यानी कि यहाँ से आएगा 10, तो आएगा 20, 10 इंटू 2 यानी कि 20 विल बी योर आंसर, राइट। तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी, करेक्ट। तो ये वैल्यू मैंने कैसे निकाली, तो पहली चीज क्या थी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को आइडेंटिफाई करना, कि अगर तुमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आइडेंटिफाई कर लिया तो तुम यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, करेक्ट। ओके, दिस क्वेश्चन अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके जो रूट्स अगर निकालो, सीधा चाहे से अगर हम निकाल ले, इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। तो इनटू -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा i√3 अपॉन 2। तो अब ध्यान से देखो तो इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो बेसिकली क्या आ रहे हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्वेश्चन बन गया, यानी कि तुम क्या लिख सकते हो, x को ओमेगा भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर ये इसके इसी के रूट्स है यानी कि x की वैल्यू है, तो x को तुम ओमेगा भी लिख सकते हो या फिर ओमेगा स्क्वायर, दोनों से ही सेम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अगर x को ओमेगा लिखोगे तो इस तरह से 1 बाय ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर मैं x को यहाँ पे बस ओमेगा पुट कर देती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। तो अगर हम x को यहाँ पे ओमेगा पुट कर देते हैं क्या होगा, तो इट विल बिकम ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा रेज टू द पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 4, फिर आएगा ओमेगा क्यूब प्लस 1 बाई ओमेगा क्यूब रेज टू द पावर 4। तो एक टर्म और भी चाहो तो लिख सकते हो, पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए तुम हमेशा एक दो टर्म एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इसका अगला टर्म लिखूं तो क्या आएगा, ओमेगा रेज टू द पावर 4 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर 4, एंड लास्ट टर्म जो आएगा दैट इज ओमेगा रेज टू द पावर 25 प्लस 1 अपॉन ओमेगा रेज टू द पावर 25 रेज टू द पावर 4। अब अगर एक चीज ऑब्जर्व करो तो यहाँ से जो वैल्यू बन रही है वो रिपीट करेगी, क्यों, क्योंकि ओमेगा क्यूब तो 1 ही होता है, ओमेगा क्यूब 1 होगा तो ये ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा ही बन जाएगा, दैट मीन्स यही टर्म आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हें सिर्फ इन तीनों टर्म्स को देखना है, तो 3 टर्म्स के बाद ये वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, और ये 25 तक जा रहा है। तो 3 का मल्टीपल अगर हम देखें तो 3 8 24, तो 24 तक तो ये वैल्यू 8 टाइम्स, यानी कि 3 8 24 ना, तो 8 टाइम्स ये वैल्यू, अगर मैं इसका वैल्यू कैलकुलेट करूं, बस उसको 8 टाइम्स कर लूं तो वो 24 तक की वैल्यू आई जाएगी। तो बस उसके बाद ये लास्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, और जो लास्ट वैल्यू भी होगी ना वो इसके फर्स्ट टर्म के ही इक्वल होगी, राइट, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो अगर हमने पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया तो मुझे सिर्फ इसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उसको बस हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी वैल्यू निकालना आसान है, कैसे, क्योंकि हमें पता है कि 1 बाई ओमेगा जो होता है दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो 1 बाई ओमेगा को अगर मैं ओमेगा स्क्वायर लिख दूं तो हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 4, एंड ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर को यू कैन राइट 1 बाई ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ओमेगा लिख सकते हो, राइट। तो ओमेगा रेज टू द पावर 4, और ये तो ओमेगा क्यूब है तो ये 1 ही है, और ये भी क्या है 1 है, तो 1 प्लस 1 रेज टू द पावर 4। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1, और -1 की पावर 4 इज +1, और ये भी क्या हो जाएगा -1 की पावर 4 +1, और ये हो गया 2, एंड 2 की पावर 4 इज 16, राइट। तो ये एक ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो आ रही है आपकी 18, तो 18 आ रही है। तो ऐसे 8 ब्रैकेट्स आएंगे, तो सीधे सीधे 18 इंटू 8 कर लेते हैं, और जो लास्ट वाला ब्रैकेट है वो लास्ट वाली जो वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू की ही इक्वल होगी, तो दैट मीन्स ये वैल्यू भी क्या होगी, 1 ही होगी,
क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी। ये भी बेसिकली क्या बनेगा, दिस इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो बेसिकली -1 रेज टू द पावर 4, राइट। तो दिस इज 1, लास्ट वाला ब्रैकेट 1 हो गया और बाकी सारे हमारे पास 8 टाइम्स आए थे, तो 18 8 जा क्या हो जाएगा, दिस इज 144 प्लस 1 दैट इज 145 विल बी योर आंसर, राइट। सो आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, राइट। तो ऐसा कोई फॉर्मूला के नाम पे मैं क्या बोलूं, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्री तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि कैसे निकालना है, राइट। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्लियर होना चाहिए, और उसका जो एक्सप्रेशन इन्होंने सेट के फॉर्म में दिया है उसको सिंपली ऑब्जर्व करना आना चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट दिस थिंग, राइट। I hope this video was helpful, and hit the subscribe button and share this channel to the any students who is preparing for JEE, right. So thank you so much, and we'll see you in the next video.